یہ کوئی عالم کا چہرہ نہیں، کوئی حافظ کا چہرہ نہیں، یہ محبوب مصطفیٰ کی غلامی کا چہرہ ہے۔ اس غلامی میں زندگی گزارنا چاہتے ہو، غلام رسول بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو بلال کے چہرے پر بھی سنت رسول کا جھنڈا چڑھا ہوا تھا۔ تمام صحابہ کے چہروں پر صرف یہی نہیں، تمام نبیوں کے چہرے پر سنت رسول کی جھلکیاں تھی، کیونکہ میرے رب نے کہا مردوں کے حسن کو میں نے داڑھی میں رکھا ہے، مردوں کے حسن کو میں نے داڑھی میں رکھا ہے۔ اگر داڑھی کاٹنا حسن ہوتا تو نبیوں کو بدصورت نہ بناتا، لیکن سارے نبیوں کو حسین اور خوبصورت بنایا اور کہا کہ یہ داڑھی نبیوں کی سنت ہے، خدا کا حکم ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب نبی کی غلامی کے ساتھ ایک محفل میں بیٹھے ہیں تو اس غلامی کا وعدہ اور وفا کر کے یہاں سے اٹھنا، تو اب درود پاک سے اللہ میں درود میرے پاک کا نظر آنا پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و قریبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ یہ بات نہیں ہے دعوے عشق نبی، صورت بنی ہے ان کی نا سیرت بنی ابھی۔ ایک مرتبہ کہیں سے گزر ہو رہا تھا تو دیکھا کہ ہزاروں کا مجمع ہے اور ایک میدان میں مشاعرہ ہو رہا ہے، تو تھوڑا سا میرا بھی جی چاہا کہ کچھ کھڑے کھڑے کچھ اشعار سن لے۔ میں نے کار کو روکا اور گلاس کھولا تو اشعار پڑھے جا رہے تھے۔ ایک شاعر صاحب بڑے پرجوش انداز میں کہہ رہے تھے، سامعین بھی ماشاءاللہ کیا کہتے ہیں پورے ہوش حواس میں تو تھے، لیکن عقل سے پیدل بیٹھے ہوئے بات کو سمجھنا نہیں چاہ رہے تھے۔ اور شاعر صاحب بھی بیچارے ایسے لگ رہے تھے کہ شعر تو بول رہے تھے، انہیں شعر کا سر معلوم، دھن معلوم، گدھڑ معلوم، پتہ نہیں کیا بول رہے تھے۔ کہہ رہے تھے کہ گناہ کر کے ندامت نہیں، زنا کر کے شرمندگی نہیں، اس لیے کہ میں عاشق رسول ہوں۔ عشق ہے تو جس عشق کا کھوکھلا دعویٰ کر رہے ہو وہ عشق تو صحابہ نے بھی کیا تھا، لیکن وہ عشق نہیں تھا جو تم دعویٰ کر رہے ہو۔ وہ عشق کیسے تھا؟ ایک ہم ہیں جو وہ کہتے ہیں سدا، سرکار پہ ہر چیز ہے فدا۔ ایک وہ تھے صحابہ کرام جو ہو جاتے تھے فدا، سرکار پہ مثل ہم تو صرف الفاظ میں بولتے ہیں، یہ کیسے عشق ہے؟ ان عاشقوں کو رسوا نہ کرنا جو ساری زندگی حضور کی قدموں میں گزار دیا تھا، اور تم کہہ رہے ہو ہم بھی وہ عاشق ہیں کہ گناہ کر کے ندامت نہیں، زنا کر کے شرمندگی نہیں، اس لیے کہ میں عاشق رسول ہوں۔ اور پورے واہ بولا ہے۔ میں نے کہا پورے ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا کہیں خدا کا عذاب نہ آ جائے اور کہاں سے پہلے مجھ سے شروع ہو جائے کہ تم کیوں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ میرے نبی کی توہین کے الفاظ سن رہا تھا، یہ توہین ہے نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں۔ محبت اور عشق رسول یہ نہیں ہے کہ جس سے میرے نبی نے منع کیا وہی کام کر کے عشق رسول کا دعویٰ کرنا، یہ جھوٹ ہے۔ ہر آدمی کہتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں تنہائی میں بیٹھے اس بات سے اس لیے روتا ہوں کہ ایک مرتبہ کاش میرے محبوب کا مجھے دیدار ہو جائے۔ رویا میں ان کی دید نہیں ہو سکی ابھی، نہیں ہو سکی ابھی، عشق نبی میں اپنے ہے شاید کمی، عشق نبی میں اپنے
کیا کہتے ہیں عجیب و غریب نہیں، دل جب قلب صاف ہو جاتا ہے تو اچھے اچھے حسین اور خوبصورت خواب پڑا کرتے ہیں۔ دل خراب ہونے کی علامت ہے کہ خراب خواب پڑا کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی خواب خراب ہوا کرتے ہیں آپ کی نظر میں، لیکن تعبیر کے اعتبار سے حسین اور خوبصورت ہوا کرتے ہیں۔ تو اپنے طور پر کسی کے خواب کی تعبیر نہ نکالنا، اپنے شیخ کو آ کر سنانا، تعبیر مل جائے خوش ہو جانا، نہ ملے اس خواب کو شیخ کے حوالے کر کے گھلو پتلی گلی سے گھر چلے جانا، ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار ہو کے اپنے طور پر نفسیاتی طور پر خواب کو مد نظر رکھتے ہوئے مریض بن کے دوسروں کو بھی بیمار نہ کرنا۔ بہت سارے خواب ہوتے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں خواب کی جو حقیقت ہوتی ہے وہ حقیقت ہے آپ کو نہیں، بلکہ خواب حسین اور خوبصورت بھی ہوا کرتے ہیں، لیکن بظاہر دیکھنے میں گندے ہوتے ہیں، لیکن اس کی تعبیر بہت حسین اور خوبصورت ہوا کرتی ہے۔ تو ماشاءاللہ جب دل روشن ہو جاتے ہیں، اندھیرے یوم نور کی ہزار کرن پائے گا، تو رب سے اگر چلے دوڑ کر وہ آئے گا۔ جب بندے کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے، معرفت خداوندی کا نور جب قلب کو اس اندھیرے کو، قلب کی اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے، وہ سر کی آنکھوں سے نہیں دل کی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھتا ہے جو آنکھ والوں کو نہیں، بصارت رکھنے والوں کو نہیں، کہ بصیرت ہے جو دل کی آنکھوں سے وہ سب کچھ نظر آ جاتا ہے۔ اور خدا کے اس عشق اور محبت کو مضبوطی کے ساتھ جمے رہنے کے لیے اشارہ دیتا ہے کہ دیکھو تم جس سے جڑے ہوئے ہو اس پر ہمارا انعام ہے، کرم ہے، رحمت ہے، میرے محبوب مصطفیٰ کا خاص کیا کہتے ہیں نگاہ ہے اور بزرگوں کی دعائیں ہیں۔ تو جیسے عرفان صاحب کہہ رہے تھے تو مجھے وہ خاتون کہنے لگی کہ میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اقدس کے پاس میں کھڑی ہوں، جلی مبارک کے پاس کھڑی ہوں، تو اچانک دل میں خیال آتا ہے کہ کاش اگر میرے حبیب یہاں ہوتے، گناہگار آنکھوں سے کاش نبی کا دیدار ہو جاتا۔ بس اسی خیالوں میں گم تھی کہ اچانک ایک حسین اور خوبصورت شخصیت سامنے نمودار ہوتی ہے۔ میں نے کہا کون ہے آپ؟ کہنے لگے وہ ایسے کر رہی تو مجھے کیسا پتہ چلے کہ آپ وہ ایسا کر رہی؟ یہ دل میں آ رہا ہے، میں بولنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ میں ان سے پوچھوں، تو پھر ایسا لگتا ہے کہ وہ کچھ کیسے یقین آئے گا آج میرے حافظ صاحب یہاں موجود ہیں۔ قطرے میں اچانک کیا کہتے ہیں کوئی طاقت مجھے اٹھا کر کعبۃ اللہ کے پاس لے جاتی ہے، وہی بزرگ وہاں کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد حافظ صاحب سجدے میں ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہیں آپ کے حافظ صاحب یقین آ گئے۔ تو بولے یہ کیا کر رہے ہیں؟ بولے آپ لوگوں کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو بولے کیا مانگ رہے ہیں؟ بولے سنو، تو جب غور سے سنے تو آواز آ رہی ہے کہ یا اللہ میرے مریدین، یا اپنے مریدین کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ بولنے لگے کہ حافظ صاحب کی نسبت سے آج تو اس حق پر حقیقت کو دیکھ رہے ہو، اس پر قائم رہنا، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ تو یہی ہے کہ آدمی کیا کہتے ہیں خواب جب دیکھتا ہے تو کبھی حسین ہوتے ہیں، خوبصورت خواب، دل کی صفائی وہ حسین اور خوبصورت نظاروں کو دکھا دیتی ہے، اور دل کی گندگی ہمیشہ جب آدمی غلط سوچوں اور فکروں میں ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں اور اس کے خوابوں میں، اس کے خیالات میں وہی جو باتیں ہوتی ہیں وہ خواب بھی وہی اسے دکھائی دیتا ہے۔ تو اس لیے کثرت سے اپنے کیا کہتے ہیں دل کو صاف کرتے رہنا، جب محفلوں میں آئیں گے تو دل بھی صاف ہو جائے گا، اللہ اور اس کے رسول کا جب قرب حاصل ہو جائے گا تو تمہیں بھی وہ حق نظر آ جائے گا، ہے جس نظر پر تم یقین کر کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ رویا میں ان کی دید نہیں ہو سکی ابھی، نہیں ہو سکی ابھی۔ ہر ایک جذبات اور احساسات کا اظہار کر رہا ہوں، مجھے تو ان آنکھوں کو دیدار مصطفیٰ نصیب ہو چکا ہے۔ عشق نبی میں اپنے ہے شاید کمی ابھی، صدیاں 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 گزر گئی ہے طیبہ میں آج بھی۔ صرف طیبہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، کبھی مکے سے نکلتے ہیں مدینے کے جانب، ان راہوں اور راستوں میں بھی وہی کیفیت ہوگی۔ صدیاں صدیاں گزر گئی ہے راہ طیبہ میں آج بھی،
मक्का से मदीने की चले चलो, या रियाद से जिहाद की, या अपने घर से उन राहों तक पहुंचने का ख्याल लेकर निकलो। खुदा की कसम हर राह पे तुम्हें वो कैफियत महसूस होगी। सदियां सदियां गुजर गई हैं राह तैबा में, आज भी राह तैबा में आज भी अनवार कह रहे हैं वो गुजरे अभी अनवार कह रहे हैं वो गुजरे अभी अभी। काम आया हिजरे शाह में ज़्यादा खुजालेंगे तो ज़ख्मी हो जाएगा, अब उसके बाद खुजाना भूल जाओगे, फिर उसके बाद मरहम तलाश करते निकलोगे तो गुनाह करते करते आदमी दहकती हुई अंगारों के ईंधन बन जाएगा। जब अंगारों में जाएगा तो जन्नत अब उसे मिल नहीं पाएगी, जो कुछ उसने खता किया था उसको सज़ा भुगतना होगा, है ना। तो जाहिर बात है आदमी जब किसी के दामन पकड़ेगा तो इधर उधर मसले की नज़र नहीं आएगी, कदम पर चलूँगा। और पीर भी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और इत्तिबा के रास्ते पर चलता है, उसको पीर बनाओ, है जो अल्लाह और उसके रसूल की क्या कहते हैं सुन्नतों का पाबंद, अल्लाह के अहकामात की पैरवी करने लगे और नबी की सुन्नत की इत्तिबा करने लगे, और जो नबी ने दिया है वही ले ले और जिससे मना किया उससे रुक जाए। उसके बाद अब ये नबी के रास्ते पर चलने के लिए है ना तमाम बुजुर्गों में सबसे बड़े बुजुर्गान सहाबा किराम है। हुज़ूर ने फरमाया मेरे बाद है मेरे सहाबा को देख लो, सहाबा के बाद ताबईन को, तब ताबईन को, अगर वो ना मिले तो अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो अल्लाह के दोस्त हैं उनके पीछे चलो। वो कौन होते हैं? सिद्दीकीन होते हैं, सालिहीन होते हैं, वो सुलहा होते हैं। इनकी सोहबत इख्तियार करोगे तो तुम्हें मेरी रहमत की मंजिल मिलेगी नबी की इताअत और इत्तिबा के ज़रिए से। तुम मेरी मंजिल तक पहुंचना चाहोगे तो नबी की इताअत और इत्तिबा लाजमी है, और नबी की इताअत और इत्तिबा करने के लिए अल्लाह वालों का दामन पकड़ना ज़रूरी है। अब निकाह के बगैर आदमी कहेगा, एक खातून मुझसे कहने लगी मैं शादी नहीं करना चाह रही हूँ। मैंने कहा भाई आप शादी नहीं करेंगे तो फिर कैसा होगा? बस मैं नहीं चाहता। तो मैंने कहा भाई एक तरबूज ले लो, है ना, उसको ऐसे शाखे बनो, टुकड़े टुकड़े करते रहो, खाओ, मज़ा आएगा। खाली अगर आप बगैर शाख बनाए कि अगर ऐसी लोच के खाएंगे तो मज़ा आएगा? नहीं आएगा। तो निकाह भी ऐसा ही है, निकाह करो ज़िंदगी का मज़ा आ जाएगा। निकाह के बगैर कभी वो तुम्हारी इज्जत से लूटेगा, कभी वो तुम्हारे आबरू के पीछे भागेगा, कभी ऐसा होगा तुम्हारे दिलों का सुकून गुनाह की वजह से ख़त्म कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद तुम खुश रहना चाहोगे, खुश नहीं रह पाओगे। तो अल्लाह और उसके रसूल को नाराज़ करके अगर हम खुश रहना चाहेंगे तो हमें कभी भी खुशियाँ नसीब नहीं होगी। खुशियाँ उनको मिलती हैं जो अल्लाह के अहकामात और नबी की पैरवी करते हैं इताअत और इत्तिबा के साथ। और इताअत और इत्तिबा के लिए अहलुल्लाह का दामन पकड़ते हुए उनकी सोहबत इख्तियार करेंगे तो हमें सही राह मिलेगी, वरना हम कटी हुई पतंग की तरह सिर्फ हवाओं में उड़ेंगे और पता नहीं अब हमारी ये पतंग किस समंदर में जाकर डूबेगी, किस वीरानी और किस जंगल में जाकर क्या कहते हैं हमारा हशर क्या करेगी। अगर हम अपनी डोर किसी के हाथ में दे देंगे तो फिर हमें सही राह मिलेगी, सही रास्ता मिलेगा। फिर उसके बाद दिलों में सुकून मिल जाएगा, फिर अल्लाह की मारिफत हमारे दिल में आ जाएगी। इस दिल की वीरानी आबादी में बदल जाएगी और ये दिल की अंधेरे रोशनी में बदल जाएगी, है ना। तो इसीलिए जहालत की ज़िद इल्म है और अंधेरे की ज़िद रोशनी है। और ज़ाहिर करो ना सारी दुनिया में जो वाबिला मचाया गया उसकी ज़िद अल्लाह को राज़ी करना है। दुश्मन आपके ऊपर काबू उस वक़्त तक नहीं पा सकता है जब तक तुम अल्लाह से जुड़े हुए होगे। जिस वक़्त तुम अल्लाह से टूट जाओगे तो फिर लंगड़े मच्छर के ज़रिए से नमरूद को अल्लाह ताला ने मौत के लिए सुला दिया। अल्लाह ताला को कोई सबब की ज़रूरत नहीं है, चाहता है दुश्मनों को पकड़ने के लिए तो एक लंगड़े मच्छर को भेज देता है। एक ही पैर था, उसे घुसा नाक में और बैठा दिमाग पे और जाकर खोपड़ी को और उसके भेजे को हिलाता रहा। एक टांग से हिलाता, जिस वक्त वो हरकत करता उसके सर में दर्द देता। वो अपने वजीरों को बुलाता और कहता जूतों से मारो। जब जूतों से उसे मारते तो वो मच्छर खामोश हो जाता। बताओ, जूते खा खा के मर गया। अब दूसरों को क्या नुकसान पहुंचाता है। तो जाहिर बात है अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह ताला तुम्हारा मुहाफिज बन जाएगा नबी की इताअत और इत्तिबा के ज़रिए से। अगर अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते से हट कर जियोगे तुम्हें क़ारून का ख़जाना मिलेगा, तब भी तुम्हें सुकून हासिल नहीं होगा। फ़िरऔन जैसी हुकूमत पर तुम बैठोगे तब भी तुम्हें वो इत्मीनान नसीब नहीं होगा। शद्दाद जैसे जन्नत भी तुम बना लोगे तब भी उस घर में तुम्हें चैन और सुकून राहत नहीं मिलेगी। जो चैन सुकून के लिए अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा और खुशनुदी हमारे लिए
ज़रूरी है। तो अभी मैंने कहा कि परसों एक साहब ने पैर को हाथ लगाया तो 1.5 घंटा खड़ा हो गया, और अभी भी मैं सोचा कोई हाथ ना लगाए, मेरे को जल्दी जाना है, तो अचानक एक साहब अभी हाथ लगाते, फिर मैंने सोचा भैया थोड़ी देर तो बोल देना चाहिए, तो नहीं बोलते हुए फिर मैंने तो थोड़ी देर बोल दिया। तो कोई फतवे मत दिया करिए, हाँ मालूमात तो होना ना, कोई फतवे मत दिया कीजिए गरीब के ताल्लुक से। गरीब ये फतवों से बड़ा डरते रहता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि यार सुन्नत की इत्तिबा के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारो। इसलिए मैं किसी भी मसलक को बुरा नहीं बोलता हूँ, सब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी कहता हूँ सब ईमान वाले हैं, हमेशा अल्लाह ताला की रहमत की तरफ नज़र डाला हुआ होता हूँ, इसलिए मेरा ईमान है अल्लाह चाहेगा तो सबको जन्नत का हकदार बना देगा। आमीन। आप दिल की बसीर रखो, अल्लाह की रहमत की कोई इंतहा नहीं है, न इब्तिदा है न इंतहा है। जब अल्लाह की रहमत की कोई इब्तिदा ही नहीं है तो अपने आप को जन्नती और किसी को जहन्नमी क्यों कहते हो यार? अल्लाह जब डालेगा तो उसको भी डालेगा जन्नत में, तुझे भी डाल देगा, उसको जहन्नमी उसको जहन्नमी, उसके जहन्नमी होने का कोई प्रूफ है और तेरे जन्नती होने का तेरे पास कोई सर्टिफिकेट है? जिनके हाथों में जन्नती होने का सर्टिफिकेट दे दिया वो उम्र दुनिया से जाते हैं तो रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, अपनी गालों को ज़मीन पर घसते हैं और दाढ़ी को ऐसे पकड़ कर कहते हैं उम्र तो हलाक हो जाएगा, तेरा रब तुझे माफ़ ना किया हो। जब इंतकाल का वक्त करीब था तो बेटे के जानों पर उमर का सर रखा हुआ था, आपने बेटे से कहा कि बेटे सर को ज़मीन पर रख दे। जब बेटे ने 1 से 2 मरतबा इसरार करने पर सर को ज़मीन पर रखा, उमर ने इस दाढ़ी को ऐसे पकड़ा और इन गालों पर ज़मीन पर घसने लगे और रोने लगे, कहने लगे उमर तो हलाक हो जाएगा, तेरा रब अब तुझे माफ़ ना किया हो। हज़रत अली कहने लगे क्यों रो रहे हैं तुम? बोले अल्लाह के जनाब में हाजिरी का वक्त करीब आ गया है, अब उमर तेरा क्या होगा, है ना? खुदा माफ़ करेगा या पकड़ लेगा? बोले घबराओ नहीं, इन कानों से मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से सुना है कि उमर जन्नती है। आप इसको देख कर कहने लगे सच कह रहे हो? खुद सुने हैं, लेकिन अब ये सिचुएशन, ये हालत है कि खौफ खुदा की वजह से उनको अपने सुने हुए कानों पर यकीन नहीं है। अब अली से कहते हो क्या तुमने सुना था हुजूर ने कहा था कि उमर जन्नती है? हाँ, कल क़यामत के दिन तुम गवाही दोगे? तुम गवाही दोगे कि हुजूर ने कहा था कि उमर जन्नती है? तो आपने कहा मैं भी गवाही दूंगा, मेरे दोनों बेटे हसन और हुसैन भी गवाही देंगे कि नाना जान ने कहा था कि उमर जन्नती है, अली भी कहेगा उमर जन्नती है। उस वक़्त एक ठंडी सांस लिए और कलमा पढ़े और दुनिया से रुखसत हो गए। जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया मेरे बाद नबूवत का सिलसिला जारी होता तो उमर नबी होता, और उमर जिस वक़्त क्या कहते हैं इस्लाम लाए, है आसमान से जिब्राइल अमीन आए, हुजूर को खुश होता हुआ कहा कि आप बहुत खुश हैं? बोले हाँ, उमर के ईमान लाने पर मैं बहुत खुश हूँ, है ना? तो जिब्राइल ने कहा आज 7वें आसमान के फरिश्ते भी खुश हैं और खुदा अर्श मुअल्ला पर बैठे आज खुशियाँ मना रहा है। सुभान अल्लाह। वो उमर जिसके ईमान लाने पर खुदा खुश हो। सारी उम्मत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुरीद है, हम सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुरीद हैं और उमर मुराद है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अल्लाह से मांग कर लिया है, अल्लाह ने, है ना, महबूब ने, है ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मांग कर लिया, या तो अबू जहल को मुझे दे दे या तो उमर को मुझे दे दे। अल्लाह ने कहा जा उमर को मैंने दे दिया तुझे। और उमर जब कलमा पढ़ लेते हैं तो फिर देखो इस्लाम को वो क़ुव्वत मिलती है, वो ताकत मिलती है। जो छुप कर पढ़ा करते थे अब सर आम क्या कहते हैं दुश्मनों के दरमियान खुदा की इबादत करते हैं, और उमर के हाथ में तलवार है और कहते हैं अगर कोई अपने बीवी को, बेवा और बच्चों को यतीम करना चाहता है आजा, आज उमर की तलवार होगी और उसकी गर्दन होगी, क्योंकि मैंने कलिमा उमर कर लिया है। अल्लाह जब चाहता है तो हमें वो ईमान की दौलत से माला माल कर देता है। तो ये चीज़ जहन में रखना कि हमें क्या कहते हैं, अल्लाह ताला किसी न किसी बीमारी के बहाने इस गरीब के पास आपको भेज रहा है। मैं आपको लुट नहीं रहा हूँ, आपको धोखा नहीं दे रहा हूँ, बेवकूफ़ नहीं बना रहा हूँ, उल्लू नहीं घुमा रहा हूँ। 25 साल हो चुकी है, कुरान का मौजिज़ा है। अरे कुरान सभी पढ़ते हैं, आप नहीं पढ़ते? सब पढ़ते हैं कुरान, माशाल्लाह सब पढ़ते हैं, लेकिन जाहिर बात है इस ज़बान में अल्लाह ने असर व तासीर दे दिया है, उसको नहीं ला सकेंगे आप, है नहीं? तो जाहिर बात है हर काम के लिए अल्लाह ताला ने कुछ बंदों को मुंतखब कर लेता है कि इसके ज़रिए से अपनी मखलूक को राहत पहुँचाए। और कुछ लोग होते हैं अल्लाह ताला, है ना, उनको दे देता है, नाराज़ होकर देता है। जिसको खुश होकर देता है वो सआदत समझते हैं, और जिसको नाराज़ होकर देते हैं वो दुनिया लूटने का सबब और ज़रिया बना लेते हैं। 2 लोग होते हैं, फ़िरौन को हुकूमत दिया तो नाराज़ होकर दिया, और सुलेमान को हुकूमत दिया तो खुश होकर दिया। वो बज़ाहिर दुनिया में हुक्मरान तो बना, लेकिन क्या कहते हैं आखिरत में दहकती हुई अंगारें उसकी मुक़द्दर बना दी, और दुनिया में जब वो गुरूर तकब्बुर करते रहा तो रहती दुनिया तक अल्लाह ताला ने उसको इबरत का निशान बनाकर अजायब खाने में रख दिया। और सुलेमान को जब अल्लाह ताला ने हुकूमत दिया दुनिया में भी इज़्ज़त दी और आखिरत में उन्हें जन्नत का हक़दार बना दिया। तो अल्लाह ने इस खादिम को जो खिदमत के लिए चुना खुश होकर दिया है।
इसलिए आप सबको खुश करना चाहता हूँ, यानी क्यों, आप सबकी खुशी में खुदा की खुशी छुपी हुई है। इसलिए कहता हूँ मुरझे हुए चेहरे पर जब मुस्कुराहट देख लेता हूँ तो आसमान की तरफ देखकर कहता हूँ कि अल्लाह आप थोड़ा मुस्कुरा लीजिए जरा। आप कहिए मेरे खानदान वाले हैं, देखिए मैं इनके साथ, और आपने कहा इरहमु मन फिल अर्ज़ि यरहमुकुम मन फिस समा, यानी ज़मीन वालों पर रहम का, आफियत का, यानी मोहब्बत का, शफ़क़त का मामला करो, सिर्फ इंसान नहीं, शरीर परीर हर वो किस्म की मखलूक़ात के साथ तुम रहम का, करम का, आफियत का मामला करो, खुदा तुम पर मेहरबान हो जाएगा। उसी की मेहरबानी की तलब में आप सब पर मेहरबान हूँ, और ये मेहरबानी भी मुझे नबी के सदक़े अल्लाह के फजल से मिली है। यानी मैं भी ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ इसलिए खुदा ने मुझे ये सब कुछ दे दिया, नहीं नहीं। कचरा कुंडी में पड़ा हुआ एक हकीर सा तिनका था, उसका नाम अब्दुल मुक़्तदिर था। उसने अपनी रहमत की निगाह डाली, अपनी क़ुव्वत और क़ुदरत का सारी कायनात को करिश्मा दिखाया, ये मेरी नज़रों का कमाल है। कचरे से उठाया, मसनद पर बिठा दिया, ऐलान कर दिया, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। मेरी निगाहों का असर देखना हो तो अब्दुल मुक़्तदिर को देख लो, बुज़ुर्गों की निगाहों का असर देखना हो तो जाओ जाकर हाजी अली बाबा को देखो। ख्वाजा की नज़र पड़ने से पहले वो महादार हियो थे, ख्वाजा ने जब नज़र डाली तो अली बन गए, हज करके आए तो हाजी बन गए, और हज़रत की सोहबत बाबरकत में रहकर उन्होंने वो फैज़ान पाया कि लोगों को जब फैज़ पहुँचाते रहे तो बाबा बाबा बोलकर मशहूर हो गए, और आज उनका नाम हाजी अली बाबा है। जब बुज़ुर्गों की निगाहों में ये असर हो सकता है तो खुदा की निगाह और उसकी रहमत जब जिस पर पड़ जाती है नबी के सदक़े, उसका कमाल देखना हो, ये ख्वाजा के दिल के कुत्ते का कमाल देख लो, जो खुदा ने अपनी रहमत की निगाह डालकर आप सबका खादिम बना दिया। और इस खिदमत में बहुत खुश होता हूँ। आपसे अपना मतलब और मकसद नहीं, खड़े होकर हो या वहाँ बैठ कर हो, हर मौका जो कुछ भी खुदा सीने में आप सबकी अमानतें मुंतकिल करता है वो आप सब तक पहुँचाना चाहता हूँ, चाहे देर हो जाए या नाराज़ हो जाए आप। जिस कदर हो सका, जिस कदर कर सका, कौमों को बात हक़ की बताता रहा। हुक्म या रब सुनाना मेरा काम था, दिल की दुनिया बदलना आज तेरा काम है। आप ये ना कहो कि चचा जान पता नहीं आपकी ज़िंदगी क्या थी इब्तिदान, और कोई भी आदमी की उम्र के बाद मुत्तकी परहेज़गार बन जाता है, पता नहीं। नहीं, अल्लाह ने 15 साल और 16 साल की उम्र में आप सबका खादिम बना दिया। अब बताओ, खेल कूद की दुनिया तो इससे क्या कहते हैं बेखबर था, बस मुझको खुशी के साथ देने का गम नहीं, गम ने दिया है साथ, यही है खुशी मुझे। बस गम के पैडल माला करता था, लेकिन खुदा की रहमत जोश में आई जब उसकी रहमत की तरफ मुतवज्जे होकर उसके सामने जब हाथ फैलाया और कहा कि कोई जाह दे न जमाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे, मैं दुखी दिलों की बनूं सदा के ज़माना मेरी मिसाल। कितना भी कहूँ नीचे जाकर, तब भी अल्लाह आपके दिलों में मेरी जो अजमत डाला है उसमें कमी आने नहीं देगा, ये मेरा ईमान है। मैं कितना भी नीचे जाऊँ, लोग तो अपने आप को बड़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, मैं अपने आप को उस हकीकत तक पहुँचाता हूँ जो हूँ मैं, कुछ भी नहीं हूँ। ये दिल की है आवाज़ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, इस पर है मुझे नाज कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। कुछ होना मेरा ज़िल्लत व ख़ारी का सबब है, यह है मेरा एजाज़, यह है मेरी शान कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। अरे मैं कुछ भी नहीं है, फिर अजीब। परसों एक जज साहब आए सुप्रीम कोर्ट के, कहने लगे आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं है, जब से मेरी अकल दंग हो गई। 20 साल सुप्रीम कोर्ट में बैठा हूँ, मेरी अकल अब दंग हो रही है। आपकी बातों का मैं जवाब किया, वो सारे सवाल जो ज़िंदगी में मैंने हर एक से पूछता रहा वो जवाब मुझे नहीं मिला, आज आप कह रहे हैं मैं कुछ भी नहीं हूँ और वो सारे जवाब आपसे मुझे मिल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अंदर बैठा है आपके और बोल रहा है। मैंने कहा कौन बैठा है, मैं बताऊँ? आए अब कहते हैं हाफिज़ साहब के पास बहुत दुनिया है। मैंने कहा जो कुछ देखा है वो सब पानी है, जो तुम्हें नहीं दिख रहा है वो बाकी है, वो बाकी मेरे अल्लाह की ज़ात है जो इस दिल के अंदर समाई हुई है। सुभान अल्लाह। मेरा रब कहता है जब मैं किसी का हो जाता हूँ तो ज़बान बन जाता हूँ। वो बोलता नहीं, मैं बोलता हूँ। आँख बन जाता हूँ, वो देखता नहीं, मैं उसकी आँख बन जाता हूँ। वो कान बन जाता हूँ, वो सुनता नहीं, मैं सुनता हूँ। वो ज़बान बन जाता हूँ, वो बोलता नहीं, मैं बोलता हूँ। कल क़यामत के दिन आप सबको खुदा अपने जौनात में खड़ा करेगा और कहेगा तुम सबका कोई अमल काबिल कबूल नहीं, लेकिन एक मरतबा मैं तुम सबसे गुफ्तगू कर रहा था और तुम खड़े खड़े सब्र के साथ उन बातों को सुन रहे थे। तो आप कहेंगे आप बात कर रहे थे और हम सुन रहे थे। हाय अगर ऐसा होता तो सुबह खड़े हो जाते, शाम खड़े हो जाते, सारी ज़िंदगी आपके कदमों में खड़े हो जाते और आपकी वाज़ और नसीहत सुनकर हम सारी ज़िंदगी आपके कदमों में गिर जाते। तो मेरा रब कहता है मैं बोल रहा था तुम सुन रहे थे, वो कब
ہے نا عبد المقتدر کی زبان وہ مقتدر بن گیا تھا. سبحان یہ عبد المقتدر ہے وہ آسمانوں کا بڑا مقتدر ہے. کہے گا مسجد میں کھڑے ہوئے میری رحمت اور محبت کی طرف بلا رہا تھا. نبی کی اطاعت اور اتباع کے ذریعے سے وہ نہیں وہ میں تھا. سبحان اللہ. وہ دیکھ نہیں رہا تھا میں دیکھ رہا تھا. دیکھتے ہیں قسمت کیسے بدلتے ہیں. یہ تو آپ میں سے ہے آپ جیسا ہی ہے لیکن حق اور سچ یہ ہے آنکھیں خدا بن کر اب جب دیکھتی ہیں تو قسمت بدلتا ہے. ہاتھ جب رکھ دیتے ہیں تو پھر ان کی بیماری کو شفا کیسے ملتی ہے. میرا رب کہتا ہے میں ہاتھ بن جاتا ہوں آنکھ بن جاتا ہوں پیر بن جاتا ہوں اس کی سانسوں کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکن کے ساتھ ہو جاتا ہوں. ہے نا خون کے رگ رگ میں ہے نا جسم کے رگ رگ میں اور خون کے کیا کہتے ہیں خطرے میں اس کے سما جاتا ہوں اور اس کی اس ویرانی کو آبادی میں بدل دیتا ہوں. اس اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہوں. تبھی تو کہا جاتا ہے اندھیری یوم نور کی ہزار کرنیں پائے گا. طرف کی سمت گر چلے دوڑ کر وہ آئے گا. پھر تیری ہر ایک آرزو کرم سے گھر وہ لائے گا. گاڑی میں دیکھ کر کہا بہت قیمتی گاڑی میں ہے حافظ صاحب. ارے یار کوئی قیمت نہیں اس گاڑی کی. اگر واقعی تمہارے دل میں اگر حافظ صاحب کی عظمت اور محبت ہوتی تو دیکھ کر کہتے کاش میرا بس چلتا تو دنیا کی سب سے قیمتی گاڑی حافظ صاحب کو دے دیتا. تب بھی کہتا وہ گاڑی سستی ہے اس لیے کہ حافظ صاحب تنہا نہیں حافظ صاحب نہیں ہم سب کا رب ان کے ساتھ بیٹھا. سبحان اللہ. یہودی بیٹھتا ہے کروڑ کی گاڑی میں تو تعجب ہوتا ہے. اللہ والا جب کسی گاڑی میں بیٹھتا ہے تو مرچیاں لگ جاتے ہیں. یہ ہمارے ایمان کے خراب ہونے کی علامت ہے. ہوتا تم بھی لا لو پانی مارنا ہے. ایک صاحب نے کہا حافظ صاحب بھی پانی مارتے ہیں. انہوں حافظ صاحب کے پاس آتے نہیں تھے. کیا کرتے ہیں حافظ صاحب تمہارے پاس تو پانی مارتے طبیعت اچھی ہوتی. اب طبیعت ان کی خراب ہوگی میرے کو لے کے چلو. بیوی بول رہے تھا نہیں لے کے چلتا میں آؤ میں پانی مارتا ہوں کہ پانی مارے. پانی مارتے دونوں ہاتھ گر گئے. اب کام ہی نہیں کر رہے. ایک دو ہفتے دواخانے پھرے اس کے بعد کیا کہتے ہیں بیوی نے کہا یہ پانی حافظ صاحب مرتے ہیں دیکھو آپ کے ہاتھوں اٹھ جاتے ہیں چلو میرے ساتھ. بیوی جب انہیں پکڑ کے لائی حافظ صاحب پانی مارتے. میں نے کہا بچھو کا منتر نہیں آتا ہے سانپ کے بلوں میں ہاتھ نہ ڈالنا. ابھی بھی جو کھڑے ہیں کسی ایک کو آپ پانی مار کے بتا دو ہاتھ تو دور کی بات ہے آپ بھی نہیں اٹھیں گے جگہ پہ سے. لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے معجزہ دے کر نبی کے صدقے میں انتخاب کر کے کھڑا کیا ہے. بس ایمان کے ساتھ ہو یقین کے ساتھ ہو. یار پانی صرف پانی ہی نہیں مارتا ہے اس کے پیچھے بہت بڑا کام ہو. ابھی اتنی دیر میں نے گفتگو کی کیا کہ آپ سب کے اوپن ہارٹ سرجری کیا ہوں. بظاہر آپ کھڑے ہیں لیکن ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے جو آپ کا کام کر رہا ہے کھڑے کھڑے. اب آپ یہاں سے بھی اگر سیدھا گھر کو واپس چلے جائیں گے تب بھی آپ کا آنا وہاں بیٹھ کر پانی مارنے سے زیادہ قیمتی بن جائے گا. ٹھیک ہے چلیے لیکن پھر بھی اندر آئیے.